நான் சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். में कर रहे थे और अब शपथ की क्रिया शुरू होगी। राज्यपाल ने उन्हें हाथ का इशारा करके देखिए फिर से कहा है संभवतः कि अब आधिकारिक तौर पर शपथ शुरू किया जाए। சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். कर्ण और अर्जुन की त्राया किट अलग है क्योंकि ये कस्टमाइज है उनके रूट कॉज के हिसाब से और डॉक्टर्स अप्रूव भी। त्राया के और हम हिस्टीरिया देखिए ये राज्यपाल राहुल गांधी तमाम मंच पे जो लोग मौजूद थे उन सब का हाथ जोड़ करके अभिवादन करते विजय तमिलनाडु के लोकप्रिय नेता एआईडीएमके डीएमके सभी को राजनीति के इस अखाड़े में बुरी तरह पछाड़ करके विजय ने अपना यहां पर डंका बजाया है और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और अब उनके इस नए मंत्रिमंडल के 8 अन्य सदस्य जिनको मंत्री बनाया जा रहा है वो एक एक करके क्रमवार तरीके से शपथ लेंगे। पद और गोपनीयता की विजय 2 फरवरी 2024 को राजनीति छोड़ी थी और उसके बाद उन्होंने ऐसा 2 साल के भीतर इतिहास रचा जिसका अंदाजा किसी को नहीं रहा होगा और अब उनके मंत्रिमंडल में 8 चेहरे शपथ लेते என் ஆனந்த் என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறாக பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் பிள்ளதா முழு முதல் ஆட்சியும் ஒருமையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றுபடியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியலமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சாராவும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும்
ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். என் ஆனந்த் என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்வதும் தெரியவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவே மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். नेहरू इंडोर स्टेडियम में एक के बाद एक विजय के नए कैबिनेट के मंत्री वहां शपथ लेते, राज्यपाल शपथ दिलाते। विजय आज राज्य के नवे मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और अब यह अगला नाम சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். में कर रहे थे और अब शपथ की क्रिया शुरू होगी। राज्यपाल ने उन्हें हाथ का इशारा करके देखिए फिर से कहा है संभवतः कि अब आधिकारिक तौर पर शपथ शुरू किया जाए। சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி तलपति विजय पूरे सूट बूट में हैं, तो ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं। तलपति विजय बहुत ही फॉर्मल लुक में हैं। फॉर्मल लुक और ये तस्वीरें अब आ रही हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं तलपति विजय। We extend a hearty welcome to the Honorable Chief Minister Designate Thiru C. Joseph Vijay.
लोकप्रियता को सीधे चुनावी संगठन में बदलने की कोशिश की एक्टर विजय ने। उनकी तुलना एमजीआर और एनटीआर के साथ की जा रही है, जिन्होंने सिनेमा की लोकप्रियता को सत्ता तक पहुंचाया था। विजय के मामले में फैन नेटवर्क, चुनावी संदेश और राजनीतिक समय तीनों एक साथ काम करते दिखाई दिए हैं इस बार। और तलपति विजय स्टेज पर, साथ में राहुल गांधी वहां पर पहुंच चुके हैं, गवर्नर आर्लेकर, और कुछ ही देर में शपथ समारोह शुरू होगा। आज की शपथ केवल एक सत्ता का ग्रहण नहीं, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में एक नई शक्ति का केंद्र बनकर अब रहेंगे तलपति विजय। बहुत ही खास दिन है। डीएमके एडीएमके की पॉलिटिक्स, जो आज तक लगभग 60 सालों से उनकी कंप्लीट डोमिनेंस था, डुओपोली चल रही थी, वो अब खत्म होगी। और आज विजय जिन्होंने लगभग 2 साल पहले ही टीवीके को उन्होंने बनाया था, और आज वो एक मुख्यमंत्री हैं, बनने जा रहे हैं एक्टर विजय। पुराने राजनीतिक ढांचे को उन्होंने तोड़ा है, पुराने राजनीतिक ढांचे को उन्होंने चुनौती दी है। वो उनकी मां है, जिनकी तस्वीर आ रही है। उन्होंने कहा है कि मदर्स डे का गिफ्ट दिया है एक्टर विजय ने। वो उनके पिता, जो फिल्म निर्देशक हैं, उन्होंने ही एक्टर विजय को सिनेमा में लाया था। और उसके बाद विजय ने काफ़ी सारी हिट फिल्में दी, लगभग 67 फिल्म्स उन्होंने की है, जिसमें शुरुआती दौर पर कुछ सेटबैक्स रहा, लेकिन उसके बाद एक से एक हिट फिल्म। और फिर वो हिट फिल्म से शुरुआत हुई उनकी फ़ैन फॉलोइंग की, वो फ़ैन फॉलोइंग का वोटर फॉलोइंग बन गई। और उसके बाद ये जो बार बार लोग कह रहे थे क्या ऑर्गेनाइजेशन है विजय के पास, तो ये विजय ने ये दिखाया कि ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है जब उनके पास जनता का समर्थन है। और इस समर्थन की ये तस्वीरें दिख रही हैं, क्या एक्साइटमेंट है, एक यूफोरिया के तौर पर चेन्नई के इंडोर स्टेडियम में, जहां पहली बार इस तरह का शपथ समारोह हो रहा है। एक्टर विजय अपनी फिल्म्स की जो रिलीज है वो यहाँ पर करते आए हैं, बड़े स्केल पर हो रहा है। इंडोर स्टेडियम की कैपेसिटी है 8,000 लोगों की, बाहर का जो स्पेस है वहां पर लगभग 40,000। Ladies and gentlemen, we extend a hearty welcome to the honorable governor. लेकिन ये तस्वीरें देखिए। चलिए, गवर्नर आर्लेकर अब स्टेज पे पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में शपथ समारोह शुरू होगा। பதவியேற்க உள்ள மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள், மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு இன்னும் சற்று நேரத்தில் பதவியேற்க உள்ள மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களை அறிமுகப்படுத்துகிறார். The Honorable Chief Minister Designate will introduce the Honorable Ministers Designate to the Honorable Governor. लेकर की मुलाकात करा रहे हैं एक्टर विजय। सब अपने जो उनका मंत्रिमंडल में शामिल होंगे लोग, उनकी सबकी नाम और उनकी आइडेंटिटी बताया जा रहा है। आदव अर्जुन इस मंत्रिमंडल में शामिल हों। फोर्स बनेगी। इसके अलावा नशीली दवाओं से निपटने के लिए एसटीएफ। तो आप देखिए, तमिलनाडु के सीएम विजय ने 3 बड़े फैसले ले लिए हैं। कुछ देर पहले वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं और उसके बाद एक्शन मोड में है थलापति विजय, क्योंकि जो उनके चुनावी वादे रहे वो चर्चा का विषय रहे। अब जो मुख्यमंत्री ने 3 बड़े फैसले लिए हैं, इसमें 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी, नशीली दवाओं से निपटने के लिए एसटीएफ। तो ये 3 बड़े फैसले तमिलनाडु में थलापति सरकार का अग्निपथ, क्योंकि विजय का राज तिलक हो चुका है। अप्रत्याशित जीत, एक ऐसी जीत जिसने इतिहास रच दिया। और आप देखिए वो तस्वीर जब शपथ ले रहे थे थलापति विजय, अभिनेता से नेता बने हैं और 2 साल पुरानी पार्टी, फरवरी 2024 में वो पार्टी बनाने का ऐलान करते हैं। दिसंबर 2025 में वो अभिनय से संन्यास का ऐलान करते हैं और इस बार के देखिए विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी कर उभरी। हालांकि नंबर गेम में थोड़े से पीछे वो चल रहे थे, लेकिन अब जब उनको समर्थन मिला उसके बाद आज उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया। आप ये तस्वीर देख लीजिए, लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया और कुछ लोग तो रोते हुए भी नजर आए, भावुक नजर आए, खुशी के आंसू थे।
थलापति विजय का शपथ ग्रहण भव्य अंदाज में संपन्न हुआ, जहां समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और माहौल जश्न में बदल गया। इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। समारोह स्थल खचाखच भरा रहा। कई महिला समर्थक भावुक हुई। वहीं विजय के पिता भी बेटे की इस उपलब्धि पर भावुक हो गए। जैसे ही शपथ ग्रहण पूरा हुआ, टीवी के समर्थकों ने खुशी का इजहार करते हुए मिठाइयां बांटी, जमकर जश्न मनाया। समर्थकों ने विजय की शपथ के बाद बसों, ऑटो, सड़कों पर लड्डू बांटे, सड़कों पर आतिशबाजी की। ये मौका सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि समर्थकों के लिए भावनाओं से भरा यादगार पल बन गया। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। विजय के शपथ ग्रहण पर भावुक हुए समर्थक। राहुल गांधी समेत कई दिग्गज मंच पर रहे मौजूद। तमिलनाडु की राजनीति में नए दौर की शुरुआत। सी जोसेफ विजय एनुम नान तमाम कयासों, अटकलों और गठबंधन की लंबी राजनीतिक उठापटक के बाद आखिरकार तमिलगा वित्रिकडगम यानी टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय ने 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसके साथ ही तमिलनाडु की राजनीति में करीब 6 दशकों से चला आ रहा डीएमके और एआईएडीएमके के बारी बारी से सत्ता में आने का दौर भी समाप्त हो गया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने चेन्नई में विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 9 मई को 234 सदस्यीय विधानसभा में 120 निर्वाचित विधायकों का समर्थन मिलने के बाद विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। विजय के साथ टीवीके के कुछ वरिष्ठ नेताओं समेत 9 अन्य लोगों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। विजय कांग्रेस के सहयोग से गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। राज्यपाल ने उन्हें 13 मई या उससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश भी दिया है। जिन 9 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली, उनमें बूसी एन आनंद, आधव अर्जुना,
केजी अरुण राज, के.ए. सेंगोट्टयन, पी. वेंकटरमण, सीटीआर निर्मल कुमार, ए. राजमोहन, टी.के. प्रभु और एस. कीर्तना शामिल हैं। विजय के सफर को देखें तो ये भी किसी फिल्म से कम नहीं है। विजय के फैंस उन्हें थलपति के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1980 के दशक में बाल कलाकार के रूप में काम शुरू किया। 1992 में उन्हें लीड एक्टर के रूप में पेश किया गया और अगले 3 दशकों में उन्होंने तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा फिल्मी करियर बनाया। लेकिन विजय का ये उभार कोई संयोग नहीं था। पर्दे पर उनकी छवि समय के साथ सोच समझकर बदलती रही। 1990 के दशक के अंत में वे ज्यादातर एक रोमांटिक हीरो के रूप में दिखे। 2000 के दशक में वो गुस्सैल युवा की भूमिका में आ गए और 2012 के बाद उनकी फिल्में उन्हें एक मसीहा और भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ने वाला आम आदमी के रक्षक के रूप में पेश करने लगीं। 90 के दशक के अंत तक विजय तमिल परिवारों में एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे, जब सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन की फिल्मों की रफ्तार धीमी पड़ने लगी थी। इससे नई पीढ़ी के सितारों के लिए जगह बनी और विजय उस दौर के सबसे बड़े नामों में से एक बनकर उभरे। जैसे जैसे तमिल सिनेमा की पहुंच बढ़ती गई, विजय की लोकप्रियता भी बढ़ती गई। उन्होंने कोका कोला के विज्ञापनों में काम किया और एक वक्त तमिलनाडु में उसके ब्रांड एम्बेसडर भी रहे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों और युवाओं के बीच वे कितने लोकप्रिय हो चुके थे। लेकिन विजय की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उनके औपचारिक रूप से राजनीति में आने से काफी पहले ही दिखने लगी थीं। 2008 में श्रीलंका के गृह युद्ध के आखिरी चरण के दौरान विजय ने श्रीलंकाई तमिलों के समर्थन में और नरसंहार रोकने की मांग को लेकर भूख हड़ताल का ऐलान किया। 2018 में तुतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में कई लोगों की जान गई तो विजय ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दी। उसी साल केरल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भी भेजी। धीरे धीरे ये अटकलें तेज होती गईं कि विजय राजनीति में कदम रखने वाले हैं। फिर फरवरी 2024 में विजय ने आधिकारिक तौर पर अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम की शुरुआत की। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया कि वो फिल्मों से संन्यास लेकर पूरी तरह राजनीति में उतरेंगे। उनकी सोच एकदम सीधी थी। विजय ने कहा कि राजनीति कोई साइड प्रोजेक्ट नहीं है जिसे फुर्सत में किया जाए। अगर वे सार्वजनिक जीवन में आ रहे हैं तो पूरी तरह आना चाहते हैं। कई मायनों में विजय की फिल्मों ने उनकी राजनीतिक पारी के लिए पहले से ही जमीन तैयार कर दी थी। उनके फैन क्लब धीरे धीरे जमीनी राजनीतिक नेटवर्क में बदल गए और विजय की फैन संस्कृति कोई मामूली बात नहीं है। आधी रात और सुबह 4 बजे के फर्स्ट डे शो से लेकर विशाल कटआउट्स पर दूध चढ़ाने तक उनका प्रशंसक वर्ग बेहद संगठित और गहरी आस्था वाला है। लेकिन उनका राजनीतिक सफर बिना झटकों के नहीं रहा। सितंबर 2025 में करूर में टीवीके की एक रैली में भीड़ के दौरान कुचले जाने से कई लोगों की मौत हो गई। इस त्रासदी ने पार्टी की संगठनात्मक तैयारी और विजय की नेतृत्व क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। भीड़ के दबाव की वजह से विजय को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। उन पर पीड़ित परिवारों से तुरंत न मिलने की आलोचना भी हुई। हालांकि बाद में उन्होंने इस घटना को दिल तोड़ने वाला बताया और आर्थिक मदद का ऐलान किया। 1 महीने बाद विजय प्रभावित परिवारों से मिले और आगे की मदद का वादा किया। राजनीतिक रूप से विजय ने टीवीके को कुछ बड़े मुद्दों के इर्द गिर्द खड़ा किया है, जैसे भ्रष्टाचार विरोध, सामाजिक न्याय, तमिल अस्मिता और केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैये का आरोप। टीवीके बीजेपी को अपना वैचारिक विरोधी और डीएमके को अपना मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानती है। चुनाव से पहले कई विश्लेषकों का कहना था कि टीवीके में दूसरी कतार का मजबूत नेतृत्व नहीं है और गठबंधन के सवाल भी अनसुलझे हैं। लेकिन अब इन सारे सवालों को पीछे छोड़ विजय तमिलनाडु के नए सीएम बन गए हैं। Chief Minister ये तस्वीरें, ये वीडियोस देखिए। कभी राहुल गांधी और थलापति विजय हाथ मिलाते आपको यहाँ नजर आएंगे, तो दूसरे ही पल राहुल भरे मंच पर विजय का हाथ उठाकर जीत का जश्न मनाते दिखेंगे। तो वहीं कभी दोनों नेता कान में फुसफुसाकर लंबी बातचीत करते आपको नजर आ जाएंगे। और सबसे ज्यादा चर्चा इस पल की हुई है सोशल मीडिया पर, जब मुख्यमंत्री बनने जा रहे विजय अपने फोन में राहुल गांधी के साथ सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करते नजर आए हैं। दोनों साथ मंच पर पहुंचते हैं, साथ बैठते हैं, साथ खड़े होकर जनता का अभिवादन कर रहे हैं। और अब इन तस्वीरों ने तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक एक नए राजनीतिक गठबंधन की चर्चाओं को हवा दे दी है।
तमिलनाडु की राजनीति में आज सिर्फ एक नए मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली, बल्कि मंच पर ऐसा राजनीतिक और भावनात्मक दृश्य, ऐसी केमिस्ट्री देखने को मिली जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जब थलापति विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पहुंचे तो हर कैमरा सिर्फ उन पर नहीं बल्कि उनके साथ मौजूद राहुल गांधी पर भी टिका हुआ था। कभी दोनों हाथ मिलाते नजर आए हैं तो कभी राहुल गांधी भरे मंच पर विजय का हाथ उठाकर जीत का जश्न मनाते दिखे हैं, तो कभी दोनों कान में फुसफुसाकर लंबी बातचीत करते नजर आए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उसी पल की हुई जब विजय अपने फोन से राहुल गांधी के साथ सेल्फी वीडियो बना रहे हैं। दोनों साथ मंच पर पहुंचे हुए हैं, साथ में बैठे हुए हैं, साथ खड़े होकर जनता का अभिवादन भी कर रहे हैं और पूरे समारोह में उनकी केमिस्ट्री ने राजनीतिक गलियारों में नए समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है। दरअसल तमिलगा वित्री कज़गम यानी टीवीके के चीफ और सुपरस्टार से नेता बने सी जोसेफ विजय ने तमिल में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इस ऐतिहासिक मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी ने इस समारोह को सिर्फ राज्य का राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रहने दिया, बल्कि इसे राष्ट्रीय राजनीति के बड़े संकेतों वाला मंच बना दिया। कांग्रेस ने तमिलनाडु में विजय की पार्टी को समर्थन दिया है और राहुल गांधी का इस तरह विजय के साथ हर पल मौजूद रहना अब कई नए राजनीतिक संदेशों के तौर पर देखा जा रहा है। शपथ ग्रहण शुरू होने से पहले ही दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में राहुल गांधी और विजय साथ साथ चलते नजर आए। मंच पर बैठते वक्त दोनों एक दूसरे से लगातार बातचीत करते रहे। कई बार राहुल गांधी विजय के कान में कुछ कहते दिखे तो विजय मुस्कुराते हुए जवाब देते नजर आए। यही नहीं, जब विजय ने जनता की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया तो राहुल गांधी भी उनके साथ खड़े होकर हाथ जोड़ते दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं बल्कि एक नई राजनीतिक साझेदारी का सार्वजनिक प्रदर्शन हो। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में थलापति विजय की सरकार बनने के पीछे कांग्रेस और राहुल गांधी की भूमिका को बेहद अहम माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव में टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर तिरुसी जोसेफ विजय लोकप्रियता को सीधे चुनावी संगठन में बदलने की कोशिश की एक्टर विजय ने। उनकी तुलना एमजीआर और एनटीआर के साथ की जा रही है, जिन्होंने सिनेमा की लोकप्रियता को सत्ता तक पहुंचाया था। विजय के मामले में फैन नेटवर्क, चुनावी संदेश और राजनीतिक समय तीनों एक साथ काम करते दिखाई दिए हैं इस बार। और थलापति विजय स्टेज पर, साथ में राहुल गांधी वहां पर पहुंच चुके हैं गवर्नर आर्लेकर, और कुछ ही देर में शपथ समारोह शुरू होगा। आज की शपथ केवल एक सत्ता का ग्रहण नहीं, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में एक नई शक्ति का केंद्र बनकर अब रहेंगे थलापति विजय। बहुत ही खास दिन है। डीएमके एडीएमके की पॉलिटिक्स, जो आज तक लगभग 60 सालों से उनकी कंप्लीट डोमिनेंस था, डुओपोली चल रही थी, वो अब खत्म होगी। और
आज विजय जिन्होंने लगभग 2 साल पहले ही टीवीके को उन्होंने बनाया था और आज वो एक मुख्यमंत्री हैं, बनने जा रहे हैं एक्टर विजय। पुराने राजनीतिक ढांचे को उन्होंने तोड़ा है, पुराने राजनीतिक ढांचे को उन्होंने चुनौती दी है। वो उनकी मां है जिनकी तस्वीर आ रही है। उन्होंने कहा है कि मदर्स डे का गिफ्ट दिया है एक्टर विजय ने, वो उनके पिता जो फिल्म निर्देशक हैं, उन्होंने ही एक्टर विजय को सिनेमा में लाया था और उसके बाद विजय ने काफ़ी सारी हिट फिल्में दी। लगभग 67 फिल्म्स उन्होंने की है, जिसमें शुरुआती दौर पर कुछ सेटबैक्स रहा, लेकिन उसके बाद एक से एक हिट फिल्म, और फिर वो हिट फिल्म से शुरुआत हुई उनकी फ़ैन फॉलोइंग की। वो फ़ैन फॉलोइंग का वोटर फॉलोइंग बन गई और उसके बाद ये जो बार बार लोग कह रहे थे क्या ऑर्गेनाइजेशन है विजय के पास, तो ये विजय ने ये दिखाया कि ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है जब उनके पास जनता का समर्थन है। और इस समर्थन की ये तस्वीरें दिख रही हैं, क्या एक्साइटमेंट है, एक यूफोरिया के तौर पर चेन्नई के इंडोर स्टेडियम में, जहां पहली बार इस तरह का शपथ समारोह हो रहा है। एक्टर विजय अपनी फिल्म्स की जो रिलीज़ है वो यहाँ पर